Hello everyone, my name is Ashish and hope everyone is going to perform quite well. Welcome in the next session of machine learning. In this session, we are going to create a data model, pivot tables and other operations. Before that, we see in previous session, we have got a data that is movies.csv and ratings.csv and assign it into the variable that is the data and ratings as per you can see. Then we merge this data in the variable data and then created a new table that is movie id.csv. Firstly, I want to clear you that the in movie id.csv we're gonna merge this table that is movies.csv table and ratings.csv into one, and then we are going to process further. After this table is merged, we can see that the data variable is overridden. Okay, I hope you got my point. Data variable we are declared previously for movies.csv data file. That's it, and we have an overridden data variable with a new table that is combination of the two tables, movie id, ratings and movie. Okay, I hope you got my point, and let's start further. Okay, fine. We coded a new variable for aggregate the data, and this one is an overridden on the data table, that is data variable. So I hope you understand overridden method, how I can override the data on the one function to another function. Firstly, I want to say that I haven't created a table which has an aggregate function, that is an aggregate of the complete table with an mean. इसका मतलब है कि मैंने अगर इसका मतलब है कि मैंने एक नया टेबल बनाया है, यानी जो भी पहले सा मर्ज किया हुआ टेबल था उस टेबल में मैंने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस लगाए हैं और उसका मीन निकाला है, क्योंकि मैं उसका मीन निकालना चाहता था, और बाद में मैंने उसका पिवोट टेबल में कन्वर्जन कर दिया है. ये पीडी डॉट चाहिए. एंड देन जो भी डेटा हमने पहले से वो लिया था, मतलब जो इस तरह से लिया था, ये नॉर्मल डेटा हो गया क्योंकि हम इसे डायरेक्टली अपने यूजर को शो कर रहे हैं. तो हम उसका पहले पिवोट टेबल निकालेंगे, एग्रीगेट फंक्शन का पहले उसका मीन निकालेंगे, टाइटल और जेनर्स यानी कि टाइटल जो रो होंगी और जेनर्स नाम का जो रो होंगी, उन दोनों रो से हम मीन निकालेंगे और एग्रीगेट फंक्शन में डाल देंगे. Okay, I hope you got my point, and let's run it again. Yeah, here is an output. We can see that title table is firstly initialized and then genres table is initialized. I hope you get my point. In previous command we have see that the movie id are firstly generated and then title and then genres. In here we can see that the title first, genre second, and movie id is in last, and rating is of course. That means this is an aggregate. ओके, आप समझ चुके होंगे एग्रीगेट का मतलब क्या होता है. तो ठीक है, नहीं समझे तो देखते रहिए. एग्रीगेट का मतलब ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा किस मूवी को लोगों ने पसंद किया, मतलब 4 स्टार देने वाले ज्यादा है. जो 9000 ये मूवी आईडी है, इसको 4 स्टार देने वाले ज्यादा लोग हैं और यूजर भी बहुत सारे हैं. ओके, एंड देन we resetted the index of a table. Firstly the label of a table, that is title and genres, then in place, that is true. In place means
you can see this is indented, just justified indented, and then we are going to this indent to the left. Okay, that means in place is true is equivalent to index left. And then geners. Okay, fine, I hope you got it. Here we can see this we are got a mean of complete table. Then firstly we need to show this data on a table format. Okay, that's it. As we can see here, we are got the data in a graphical user interface. Firstly, I want to explain your code. I am going to plot here the parameters of a figure, that is matplotlib, it is plt, here it plt pyplot, and then I am going to share the SNS. What SNS? SNS, that is seaborn, to create assumption of a complete data and make it in a percentile format. For that I am choose the seaborn and then display data, that is displot. Then after I have a display data, that is ratings, and then set it color black. Yeah, this is my favorite color, that is purple. And then distribution of ratings, give it a title and then show it. So आपको जितना भी समझाओ उससे अलावा मैं आपको समझाना चाहता हूँ. मैंने यहाँ पे जो इंस्टेंस क्रिएट किया था हमने मैटप्लॉटलिब का, वो इंस्टेंस कॉल किया है, दैट इज plt. देन उसको पैरामीटर्स पास किए हैं, जो कि plt को पैरामीटर्स चाहिए कि हमें फिगर की साइज कितनी होनी चाहिए. तो मैंने अपने फिगर की साइज 8/3 रखी है. तो आप देख सकते हैं यहाँ कि ये जो सीधा है दैट इज वर्टिकल, तो ये 3 यानी कि 300 पिक्सल का है, एंड देन जस्ट अ वर्टिकल ये 8 यानी कि 800 पिक्सल्स का है. ओके, गॉट इट. देन एसएनएस यानी सीबॉर्न. सीबॉर्न को हमने क्या दिया है, हमने सीबॉर्न को डेटा एनालाइज करने के लिए है, दैट इज प्लॉट डिस्प्ले के प्लॉट जो भी हमने बनाया है वो पूरा का पूरा प्लॉट डिस्प्ले करने के लिए सीबॉर्न को डेटा दिया है. तो आप ये जो गाड़ी लाइन दिख रहे हो ना, ये जो ज्यादा डार्क है पर्पल में, तो ये डार्क वाली लाइन सीबॉर्न ने ड्रॉ की है. समझ गए? फर्स्टली आई गॉट पास इट द रेटिंग्स, दैट इज ratings.csv. तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने रेटिंग पास कर दी है. जिस भी डेटा को रेटिंग ज्यादा होगी वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी. देन हमारे जो भी पूरा का पूरा टेबल है उसका कलर दिया है. देन उसको टाइटल दे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग्स, एज यू कैन सी हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग्स. देन प्लॉट डॉट शो. तो इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे बताइएगा, अगर समझ आया हो लेट्स गो फर्दर वे. सो एज वी गॉट इट, firstly the show the mean value of a complete data, then that's it. Here after creating a pivot table, we go to the data and then we are going to print a year of the movie release. That is after creating a pivot table we got a data and then we are process on that data. For we don't know how many years is in there, and then we don't know what is the length of complete data. यह मतलब हमने जो भी डेटा लिया है अपने डेटा से, यानी कि अपने जो मैप से,
तो उसमें कितने सारे ईयर हैं, 2002 से लेके 1996 है, 1995 है, 2001 है। तो कितने ईयर है हमें जानने हैं कि कितने ईयर है टोटली, क्योंकि एक फिल्म एक ईयर को रिलीज नहीं होती, वो हर एक बार 10-12 फिल्म रिलीज हो जाती है एक ही ईयर को। देन वी नीड टू नो हाउ मेनी ईयर्स इज ऑन देयर। सो हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास 103 ईयर्स का डेटा है, यानी कि 103 साल की मूवीज का डेटा है हमारे पास राइट नाउ। सो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे ईयर्स हमें काउंट होके मिल रहे हैं। सो फर्स्टली लेट्स गो ऑन द कोड। तो मैंने डेटा नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, जिसको मैंने एरे बना दिया, दैट इज एन एरे ऑफ वाई, क्योंकि मैं ईयर का बनाना चाहता था। देन उसको असाइन कर दिया एक जो प्रीवियसली हमारा डेटा पिवोट टेबल में पास हुआ था, उस पास हुए जो भी टेबल का था डेटा, तो उसका हमें यहाँ पे टाइटल पास कर दिया। ओके, देन उसको स्प्लिट कर दिया स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर से। तो अगर आप टाइप कास्टिंग जानते होंगे पाइथन में, तो हम टाइप कास्ट कर सकते हैं, हम इंटीजर को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग का इंटीजर में, या फिर बुलियन का इंटीजर में, फ्लोट में, ऐसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसका टाइप कास्ट किया एंड देन टाइप कास्ट करके स्प्लिट कर दिया जो भी स्पेस होंगी डेटा के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ स्पेस आई है। सो जो भी स्पेस होंगी उसको टाइप कास्ट कर दिया और उस स्पेस को स्प्लिट कर दिया, मतलब उसको बढ़ा दिया, यानी कि हमारा डेटा जो है वो उखड़ा उखड़ा दिखे, एकदम कॉम्पैक्ट ना दिखे। देन जो मैंने ईयर नाम का डेटा पास किया था और एक एरे बना दिया मैंने उसके लिए ईयर नाम का। देन जो नया वाला एरे बनाया था उसमें वो पुराना वाला एरे जिसमें मैंने पिवोट टेबल को पास किया था, वो वाला एरे उसको पास कर दिया नए वाले एरे को। देन उसके ऊपर मैंने लैम्बडा फंक्शन अप्लाई कर दिया। सो अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो तो होप यू डू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट ऑन देयर। एंड इफ अगर आपकी मैथ्स अच्छी ना हो तो भी आपको बताना चाहूंगा कि मैंने लैम्बडा फंक्शन हमने इसलिए यूज किया है ताकि हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये डेटा चाहिए, यानी कि ये फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट होगा, देन जैसे इसका पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप उसको मेमोरी से रिमूव कर देगा, देन माइनस। ओके, तो एक ही बार ये इनिशियलाइज होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक ही बार इनिशियलाइज हुआ है, जैसे हम इसे इनिशियलाइज करते हुए ऐसे अपने आप को ड्रॉप कर देगा थोड़ी देर के बाद। देन हमने डेटा नाम का एक और वेरिएबल लिया है और जो भी हमारा प्रीवियस डेटा वेरिएबल था उसको फिर से ओवरराइड कर दिया है। ओके, तो हम इसे बार बार ओवरराइड कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आप बार बार इसे ओवरराइड ना कीजिएगा, क्योंकि दिमाग चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप अपने दिमाग का डेटा ओवरराइड कर देंगे तो हिस्ट्री में मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में ज्योग्राफी मिक्स हो जाएगा। देन इसको ओवरराइड कर दिया डेटा फंक्शन को, फिर किससे, और एक डेटा नाम का जो प्रीवियस वाला डेटा था उस ओवरराइड करते वक्त हमने प्रीवियस वाला डेटा फंक्शन को पास किया। देन प्रीवियस वाले डेटा फंक्शन में जो भी y यानी कि जो भी ईयर था उसे हमने ड्रॉप कर दिया एंड देन एक्सिस को 1 कर दिया। एक्सिस यानी ये खड़ा वाला, यानी हॉरिजॉन्टल 1 एक्सिस को पास कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि एक ही एक्सिस है, दैट इज देयर इज नो 2 or more एक्सिस देन हियर। तो ये एक ही एक्सिस में हमने स्पेस में स्प्लिट कर दिया है फंक्शन को। देन एक ही एक्सिस में हमने डेटा पास करना था, इसलिए एक्सिस 1 डाला है यहाँ पे। देन जो भी हमने डेटा फंक्शन पहले बनाया था दैट इज ईयर, दैट इज वो एरे ऑफ ईयर, देन वो यहाँ पे पास कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे झांकना था कि इस जो भी एरे में मैंने लैम्बडा फंक्शन लगाया है उस एरे में क्या मिला है मुझे। तो ऑफ कोर्स मिलना तो मुझे ईयर ही था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 103 मूवीज हैं हमारे इस वाले एरे में। आई गॉट इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 2002 से लेके यहाँ पे मूवीज है 1902 तक। ओके, गॉट इट। लेट्स गो फर्दर एंड सी व्हाट वी कैन डू फॉर नाउ। तो जैसे कि आप देख चुके हो यहाँ पे मैंने जो भी डेटा पास किया था ये ट्रिपल डॉट आ गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे पास करना चाहता हूँ
जो भी हमारा डेटा होगा वो फॉलो प्रोसेस होना चाहिए कि हमें टोटली कितना डेटा है हमारे पास। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे एरे में। सो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि हमारा जो भी डेटा था प्रीवियसली हमने वो ट्रिपल डॉट में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि हम इतना बड़ा डेटा नहीं देखना चाहते थे। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप जो भी देखे वो पूरा सीखे, आधा सीखने में कोई मतलब नहीं। तो so I have create a new function that is data and then separated it। मैंने ये जो ब्रैकेट दिख रहे थे, ये ब्रैकेट को हटा दिया यहाँ से सिंपल स्ट्रिप फंक्शन से। तो ये स्ट्रिप नाम का फंक्शन है, हमें अगर हमारे डेटा में से कुछ रिमूव करना हो तो वो लिनियरली रिमूव कर देता है। तो मैं ये जो ब्रैकेट थे ये अच्छे नहीं दिख रहे थे तो इसे रिमूव कर दिया, और देन पैंडास की वजह से उसको मैक्सिमम रोज की लिमिट दे दी। अगर मैंने 1 and 10, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे डेटा की लेंथ 103 है, तो हम 103 तो नहीं पास कर सकते, लेकिन मैं पैंडास की मदद से उसे 100 भी पास कर सकता हूँ। देन रन कर सकता हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा रोज होंगे हमारे वो पॉइंट करके आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से पॉइंट करके आए। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे रो कॉम्प्रेस हो। देन आई हैव पास ईयर 105 एंड देन इफ अगर आप बिगिनर हो तो प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए अच्छा होता है। तो आप इसके साथ खेलिए, 105 का 10 करके देखिए, 1 करके देखिए। तो मैं नहीं करने वाला क्योंकि मुझे मॉडल बनाना है। देन डेटा नाम का जो भी वेरिएबल मैंने पहले बनाया था, आई हैव प्रोसीड इन हियर दैट इज फॉर काउंट वैल्यूज। दैट मुझे इसके अंदर झांकना था कि इसके अंदर वैल्यूज क्या तैयार हो गई है। देन आई हैव a complete data that is here you can see this name is an year and then data type. Okay, this is an data of an 64-bit we can see here integer 64-bit, and let's process further. So in this function we are going to override this array that is previously we have created, and then what is our mean to override this array? This there is firstly clear, let me clear. So हमने ये जो भी डेटा पहले लिया था कि ईयर के हिसाब से हमने जो भी पहले डेटा प्रिंट आउट किया था, इसमें कुछ डर्टी वैल्यूज हैं। तो आप देख ही चुके होंगे। अगर आपने डेटा ध्यान से नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये रोड आ गया है और 1975 से लेकर 1979 तक लेट मी शो यू, या 1975 एकदम से बीच में आ गया है, देन 1976 आ गया, देन 1964 आ गया। तो ये यहाँ पे बीच में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक लीनियर वाइज चलना चाहिए। हमारा डेटा जो भी है वो एक्सीलेंट होने के लिए सबसे पहले उसको प्रॉपरली ऑर्डर्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे डर्टी वैल्यू हटा दिया है जो कि है 2007 डिस्पॉट थिंग्स रोड। अब आपने देख ही लिया होगा कि ये रोड बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे एक डर्टी वैल्यू है, रोड आ गया है। देन we got this array and converted it in integer type and then pass it and for a head। तो डेटा झांकने के लिए हमारे पास हेड मेथड है कि हमारे डेटा में क्या है, तो हेड कर दिया। देन लेट्स गो फॉर द okay this command will going to print our year, that is first year and last year of an our data, that is first release year of a data is an 1902 and the last release year of our data is 2006. okay, I hope you got it. दिस इज सो इजी एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने डर्टी वैल्यूज हटाना है हमारे डेटा में से क्योंकि वो हमारे डेटा को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो मैंने यहाँ पे से डर्टी वैल्यू हटा दी है तो हमारा डेटा लीनियर हो गया है। तो लीनियर डेटा में हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुका हूँ, दैट इज 1902 एंड 2016 एंड देन लेट्स गो टू। हाँ, तो ये वाले फंक्शन में मैंने एक और फंक्शन लिख दिया है डेटा का। तो इस बार मैं आपको टाइपिंग नहीं दिखाना चाहता क्योंकि
वो टाइम पास हो रहा है हमारा माइक्रो सेकंड्स का। देन इस बार नया और फंक्शन लिया है, क्योंकि मुझे जो भी डेटा है वो रेटिंग्स के हिसाब से सिंप्लीफाई करना है, दैट इज फिल्टर द डेटा फॉर विद द हेल्प ऑफ रेटिंग्स, देन गेट इट इन अ पर्पल कलर। ओके, हियर यू कैन सी दैट जो भी हमारा डेटा है उसमें से सबसे ज्यादा परसेंट यानी कि 5 स्टार रेटिंग एक मूवी को मिली है, दैट इज एन आइस एज, इसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है 2016 वाली मूवी को। देन 4,500% जो रेटिंग है, यानी कि 4% वाली जो एक्स्ट्रा रेटिंग है वो पीपर नाम की मूवी को मिली है, दैट इज 2016 फ्रॉम। देन प्राइड ऑफ प्रोसीजर एंड ज़ॉम्बीज, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, शायद आईसीएच ग्रेट एक्सपेक्ट अच्छी मूवी होंगी, इसलिए इसको 5 स्टार मूवी की रेटिंग्स मिली है। तो सो आई एम गोना टू सी दिस मूवी टुनाइट, देन लेट्स गो। तो मुझे एनिमेटेड मूवी अच्छी लगती है। देन लेट्स गो फॉर द, नाउ वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द डेटा दैट इज in the format of years. Okay, I hope you got my point, and if you don't got my point, and then let's go further away and see this. Okay, I hope कि आप समझ चुके होंगे कि मैंने जो भी डेटा है यानी कि जो भी मूवीज है उनको रेटिंग के हिसाब से सैम्पलीफाई कर दिया है, सबसे ज़्यादा जिसको होंगे। तो इस वेरिएबल में मैंने सबसे 2016 लिया है। देन तो आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे 2016 की ही मूवी आई है। देन उसका टाइटल आया है तो मैंने टाइटल पास किया था। देन रेटिंग आया है तो मैंने रेटिंग पास किया था। देन इसकी वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया है रेटिंग्स के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये फंक्शन है सॉर्ट वैल्यूज बाय रेटिंग्स, एंड देन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहता उसमें, अगर डिसेंडिंग कर दिया तो चलता है, असेंडिंग कर दिया तो यहाँ पे ट्रू कर देना। खेलिए आप इसके साथ। देन हेड कर दिया है 10 मूवीज। 2016 के मूवीज में जितनी भी रेटिंग्स ज़्यादा वाली मूवी होंगी वो जो टॉप 10 मूवीज होंगी उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। देन इसका जो इंडेक्स हो गया था ड्रॉप, यानी कि वो जो इंडेक्स था 0 1 2 3, तो उसको ड्रॉप कर दिया है और उसको सिंपली लीनियर इंडेक्स में लाने के लिए मैंने उसको स्टाइल कर दिया है। सो यह असेंडिंग इज एन फॉल्स। देन उसको जो बैकग्राउंड है यानी कि डेटा का जो बैकग्राउंड है वो पर्पल कलर में दिया है, तो purple is my favorite color, and if you want to see this in a black color or gray color, then you gonna go। तो आपको सबसे पहले एक एरर जनरेट करना है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा, सी मैप इज इक्वल टू ग्रे पर्पल। सो अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले एरर से ही सीखना पड़ेगा, तो मैं तो यहाँ से ही सीखा हूँ। अगर आप चाहे तो ट्यूटर से सीख सकते हैं, लेकिन ट्यूटर भी उतना नहीं सिखा सकता जितना आपको एरर सिखा देंगे। सो हियर वी हैव एन अ ग्रे कलर। अगर हमें कौन सी भी वैल्यू चाहिए दैट इज विस्टिया, तो हम विस्टिया यहाँ पे पास कर सकते हैं। विस्टिया नहीं, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन होता है कलर का। सो अगर हमने यहाँ पे विस्टिया कर दिया तो हम जो भी डेटा का कलर था वो चेंज हो जाएगा। ये सब कलर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे बहुत सारे कलर है, BRG है, बोन है, कॉपर है। देन यू नीड टू एक्सप्लोर इट। तो एरर जनरेट करके ही आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि अगर ना जनरेट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे तो माइट भी ये थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन आपकी जो भी लर्निंग की कैपेबिलिटी को ये कम कर देता है अगर बिना एरर के सीख रहे हो तो। देन यू कैन सी हियर आई हैव passed it a vista, and here color is changed, that is an yellow and orange and reds, that's mixture of it. Okay, that's done, and let's go further for let's create a function for manage the data in yearly manner. Let's go। तो मैं यहाँ पे टाइपिंग नहीं करने वाला हूँ इस बार, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमशन है। So I hope you got my point, every point, and if you gonna with any kind of fluctuations or any kind of difficulty, then comment me or pass it me to here I have created a function that is genre. That means I want to just explore movies by its genre.
तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे जने होते हैं, जैसे कि एक्शन, एडवेंचर, एनिमेशन, चिल्ड्रन, कॉमेडी, क्राइम, डॉक्यूमेंट्री, डी ड्रामा, फैंटेसी, फिल्म नोटेड, हॉरर, आईमैक्स, म्यूजिकल, मिस्ट्री, रोमांस, साइफाई, थ्रिलर, वॉर एंड वेस्टर्न. There is a lot of genres, but I have choose it in a 16 genres, तो ये 16 to 80 genre हो गए. देन इसको 2000 ईयर से मैंने जो भी जेनर पास हुए उसको 2000 ईयर को पास कर दिया है. देन डेटा जो भी है वो एक्स कोऑर्डिनेट में आएगा जेनर्स वाला, एंड देन उसको स्प्लिट कर दिया है मैंने ये जो हमारा और का वाला ऑपरेटर होता है उसकी वजह से, ताकि हमें जो भी डेटा हो वो क्लियर हो. अगर ना हुआ तो मे बी हमें प्रॉब्लम हो सकती है. देन उसको पास कर दिया है, डेटा को ड्रॉप कर दिया जेनर को, और एक्सिस को 1 कर दिया. ओके, एक्सिस को 1 कर दिया मतलब जो भी हमारा डेटा है वो एक एक्सिस में ले लिया है. ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. एंड ये जेनर को मैंने फिर से ड्रॉप कर दिया है एक्सिस 1 से. देन पीडी कॉन्कैटिनेशन की मदद से मैंने जो भी हमारा मेथड था, दैट इज concatenation. So here you can see draw and draw back, and that's it, it's done. And then axis 1 से dx और dy से तो हम यहाँ पे सिंपली मैन्युअली भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा. तो हम 2002 की मूवी जेनर से एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो here we can see this the action movies of in 2002 year. okay, हियर मैंने ड्रॉप डाउन एक मेन्यू भी तैयार कर रखा है जिससे मैं क्राइम मूवी देख सकता हूँ, जो भी क्राइम मूवी होंगी 2002 में, तो वो सारी मूवी आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड एक्सप्लोर कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आया उसके तो बल्ले बल्ले. ओके, देन जेनिया की एक्सेस 1 कर दी. देन डेटा को एक्सप्लोर कर दिया जेनियस की मदद से. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. दैट इज फर्स्टली आई हैव गिवन इज pandas, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन दिया है मैंने. देन x को फिर से ओवरराइड कर दिया है ताकि मैं जो भी डेटा हो वो सॉर्ट हो जाए. देन x को सॉर्ट करने के लिए मैंने जेनेस के हिसाब से सॉर्ट किया है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू लग दिया है. ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब है डेटा डॉट ड्रॉप जेनेस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप नाम का मेन्यू तैयार हो गया है, ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार हो गया है. तो हमारे 2002 की 1933 की साइफाई फिल्म आप देख सकते हैं, बहुत सारी. देन आई हैव क्रिएटेड हियर अ concatenation. So you can see here concatenation are here, dx and dy, and here you can see the axis 1. And let's explore the data in the genus, and then override the x method in with the help of genus. And then एक्सप्लोर कर दिया मैंने डेटा को, जो भी डेटा है हमारा. एंड देन उसको जेनर के हिसाब से मैंने, यानी कि रेटिंग्स के हिसाब से उसे प्रायोरिटी दी है. जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी वो उखड़ के आएगा, और जिसकी रेटिंग कम होगी वो नीचे दब जाएगा. सो ओके, फाइन, दिस इज एन क्वाइट कूल. एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर देन लेट्स फॉलो मी. सो हमारा जो भी डेटा है वो ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगा रहे हैं, तो मशीन लर्निंग में क्या है कि हम पूरा का पूरा डेटा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डेटा एक्सप्लोर होगा वो मे भी हमारे मशीन पे लोड डाल सकता है. इसलिए हमें उसको बुलियंस में लेना पड़ेगा पूरे के पूरे डेटा को. सो लेट्स डू इट एंड क्रिएट अ न्यू फंक्शन. देन create a new variables and then assign it to it. So मैं यहाँ पे कोडिंग स्टॉप कर देना हूँ, और कोडिंग here you can see now mixed state प्री प्रोसेसिंग मॉडल से जो हमारा ट्रांजैक्शन है, अगर ये MLXTend नाम की मेथड आपके कंप्यूटर में नहीं है तो pip इंस्टॉल करके कर लीजिएगा इंस्टॉल. ये एक और नया मॉड्यूल है पाइथन का, तो इसके वजह से हम हमारे जो भी डेटा को लिए है, यानी कि जो भी हमारा डेटा हमने जेनस के हिसाब से कैलकुलेट किया है और उसके फेच करके हमने थोड़ा बहुत अच्छा बना लिया है, तो उस जो भी डेटा है उसको MLXtend की हेल्प से हम प्री प्रोसेस करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारा प्री प्रोसेसिंग का मॉड्यूल हो जाएगा MLXtend, एंड देन प्री प्रोसेस
इसका सब मॉड्यूल है। देन इंपोर्ट प्री प्रोसेस में एक क्लास होगा ट्रांजैक्शन एनकोडर नाम का। देन वी आर गोइंग टू प्री प्रोसेस दिस डेटा। हेलो, एज पर यू कैन सी वी गॉट अ जेनियस। तो हमने पहले ही देखा था कि हमने जेनियस के हिसाब से मूवी को फिल्टर कर लिया है एंड देन जेनियस को फिर से ट्रांसफॉर्म कर देना है फिट ट्रांसफॉर्म मेथड से। देन पैंडास की डेटा फ्रेम की हेल्प से हम उसे ड्रॉ कर लेंगे एंड देन जो भी हमारी आउटपुट होगा, आउटपुट की पहली दो रो होंगी तो हम उसे प्रिंट कर देंगे। तो आप को पता होना चाहिए कि हमने जो भी डेटा लिया है वो बुलियंस के फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें ट्रू और फॉल्स मिलेगा। सो हियर वी कैन सी दैट ट्रू और फॉल्स की मेथड से हमें जो भी डेटा मिला है वो मिला है। तो हमें जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि प्री प्रोसेसिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स का लफड़ा है, इसका एक ही झमेला है कि जो हमारा डेटा है वो 1 एंड 0 के फॉर्मेट में होगा तो अच्छा है, वो प्री प्रोसेस के लिए हमारे मशीन पे लोड नहीं डालेगा। अगर हम डायरेक्टली अपना टेबल उसे पास कर देंगे और देन उसको कहेंगे कि तू प्री प्रोसेस कर, तो वो टेबल में से 1 बाय 1 वैल्यू लेगा एंड देन इट विल फेच इट एंड देन प्री प्रोसेस इट। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे कंप्यूटर पे कोई लोड पड़े। तो इसलिए मैंने उसको ट्रू और फॉल्स के कॉलम्स में एंड रोज में प्री प्रोसेस कर दिया है एंड देन वी नीड टू just convert this false is an 0 and convert this true is an 1. So let's go further and let's create a new way. I hope previous point you got that previous point and let's see a new function. तो हमने इस वाले न्यू फंक्शन में क्या किया है, जो भी हमने फॉल्स लिया था उसे 0 कर दिया है एंड जो भी हमने ट्रू लिया था इसे 1 कर दिया। सिंपल सा मेथड यूज किया है क्योंकि हमने जेनर्स को पहले ही इंटीजर टाइप में ले लिया था। देन इस बार हमने इंसर्ट कर दिया है 0 वाला रो जो भी टाइटल में होगा वो एंड देन डेटा के टाइटल में जो भी होगा अगर फॉल्स होगा तो 0 हो जाएगा। एंड पहली जो रो है जैसे कि हमने प्रीवियस वाले मेथड में देखा था कि जो भी हमारे डेटा में 2 रोज होंगी उसको झाका है। देन हियर वी कैन सी दिस एंड 2 रोज एंड देन टाइटल जो भी हमारा नो जेनियर्स लिस्टेड था, मतलब जो भी हमारा जेनियर लिस्टेड नहीं था उसको हमने टाइटल के हिसाब से कर दिया है। तो हमारे पास 2 रो है एंड 21 कॉलम है एज यू कैन सी हियर इज प्रिंटेड एंड लेट्स गो। इट्स टाइम टू क्रिएट अ न्यू क्लास फॉर दैट इज अ न्यू मेथड फॉर fetch our data. It's time to fetch our data in a formats of all movies and let's go. Okay, I thought कि you got my previous point that is genius में हमने जो भी डेटा 110 के फॉर्मेट में लिया था वो ट्रू और फॉल्स को हमने 180 के फॉर्मेट में क्रिएट किया था। देन न्यू पॉइंट हमारे पास ये है कि जो भी हमने 180 के फॉर्मेट लिया था तो हमारे पास 21 कॉलम है और 2 रोज है, यानी कि हमारे पास 2 ही मूवीज है। तो हमारे पास जितनी भी मूवीज है वो पूरी की पूरी मूवीज का डेटा जानना है। सो मैंने ये एक और नया फंक्शन क्रिएट किया जिसको जेनर में ओवरराइड कर दिया है और जेनर्स को फिर से ओवरराइड करके ट्रांसफर कर दिया। देन जेनर को फिर से ओवरराइड कर दिया एंड देन रिनेम कर दिया जो भी कॉलम हमारे थे एक्शन एडवेंचर को उसको नीचे ले लिया एंड देन जो भी हमारे कॉलम थे 1 एंड 0 के उसको मैंने ऊपर ले लिया। देन इंडेक्स को कर दिया 0 एंड देन उसकी जो टाइप कास्टिंग होगी वो इंटीजर में कर दी। देन एज यू कैन सी हियर हमारे पास 2 रो है दैट इज 1 एंड 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 एंड 0 एंड हमारे पास जितनी भी मूवी है वो सारी की सारी मूवी है, यानी 7072 कॉलम्स है हमारे पास। तो मैं इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। यहाँ पे 3 आप देख रहे होंगे, 3 डॉट का मतलब इतना ही है कि हमारे पास 7000 मूवीज है। तो अगर हमने यहाँ पे इतना सारा प्रिंट कर दिया तो हमारी स्क्रीन ओवरहेड हो जाएगी, तो मैं इसे ओवरहेड नहीं करना चाहता। देन लेट्स गो फर्दर फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शन एंड रिकमेंड मूवीज टू द यूजर विद द हेल्प ऑफ जेनियर। ओके फाइन डन। तो मैंने एक और नया फंक्शन क्रिएट कर दिया है मूवी रिकमेंडेशन के लिए। तो हमारा जो भी मूवी रिकमेंडेशन का एल्गोरिथम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने रिकमेंड मूवी नाम का डेफिनेशन यानी कि एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें मैंने मूवी की लिस्ट पास की है एंड देन जेनर्स को कॉलम्स के हिसाब से पास आउट किया है। देन सिमिलर मूवीज को यहाँ पे एक वेरिएबल कर दिया है सिमिलर मूवीज का, यानी कि आपका जेनर अगर एक्शन होगा आपकी मूवी का तो आपको सिमिलर मूवी रिकमेंड होने के लिए, एक्शन की ही मूवी रिकमेंड होने के लिए, तो मैंने यहाँ रिकमेंडेशन में मूवी रिकमेंड की है। देन सिमिलर मूवीज रिकमेंड किया है। देन सॉर्ट आउट किया है इसकी वैल्यू असेंडिंग में तो फॉल्स कर दिया है क्योंकि हमें 5 स्टार रेटिंग वाली मूवी पहले चाहिए, देन 3 स्टार एंड देन सिमिलर मूवीज को फिर से एक और बार ओवरराइड कर दिया है, दैट इज सिमिलर मूवी आईलॉक 1 का मेथड है। तो हमें कैलॉग और आईलॉक आपको समझ में आता होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो सिंपली गूगल कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा सा एक्सप्लेनेशन है तो मैं इसे नहीं समझाना चाहता हूँ। देन जो भी हमारा डेटा होगा उसको 20 जो भी मूवी होगी उसको हमने दिखाना है हमारे यूजर को। देन तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा क्योंकि हमारा जो भी मूवी का रिकमेंडेशन इंजन होगा वो पूरा का पूरा रिकमेंडेशन इंजन एक्सप्लोर करेगा हर एक मूवी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ 7072 मूवीज है। सो दैट्स डन। हमने जो भी ड्रॉप डाउन मेनू बनाया था यानी कि हमारा जो भी डेटा की ड्रॉप डाउन मेनू थी वो आप देख सकते हैं यहाँ कि ड्रॉप डाउन मेनू में मैंने सारी की सारी मूवीज असाइन कर दी थी एंड देन यू कैन सी हियर इज अ लॉट ऑफ मूवीज। देन अगर हमने ब्लाब्ला बाम्बाला ऐसे ही कुछ मूवी का नाम ले लिया तो उसके लिए हमें ये वाली सारी की सारी मूवी रिकमेंडेशन होगी। सो हमारे रिकमेंडेशन इंजन का काम इतना ही है कि जो भी हमारे पास पहले से डेटा है उसको प्रोसेस करना है एंड देन उस प्रोसेस किए हुए डेटा को यानी कि उस जो भी प्रोसेस किए हुए डेटा में जेनर्स होगा और जो भी अदर की स्टैक्स होंगी वो की स्टैक्स यहाँ पे हमें शो आउट होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने कौन सी भी मूवी ले ली है तो उसके जेनर्स के हिसाब से हमें मूवी रिकमेंड हो रही है। ओके, देन आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड let's go see movie. Iron Man movie 3 is also here. Let's see the recommendations for it. तो ये जो है ये फंक्शन आपके कंप्यूटर पे यानी कि आपके डिवाइस पे बहुत ज्यादा लोड डालने वाला है क्योंकि जो भी डेटा हो रहा है वो प्रोसेस इन द फॉर्मेट ऑफ अ रोज एंड कॉलम्स एंड अ टेक्स्ट। सो दिस इज एन रिकमेंडेशन इंजन। तो हमारा यहाँ रिकमेंडेशन इंजन कंप्लीट होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ कि हमें प्रॉपरली मूवी रिकमेंड हो रही है। तो मैंने आयरन मैन 3 डाला तो बैटलशिप, रीडायरेक्ट, आई एम नंबर 4, वी वेलेंडा एंड ट्रांसफॉर्मर्स मूवी जैसी मूवी रिकमेंड हो रही है। सो हियर यू कैन सी द आयरन मैन 2 इज आल्सो देयर एंड आई होप you got a quite clear idea about recommendation engine and I hope it's too easy to process for it and you can see the recommendations on here and if you want to see the 10 recommendations and you never want to just load on your machine then see here the 10 recommendations only and not go for 20 40 50 or more than 30 or more than 60 is not recommended. Please avoid it 60 movies recommendation at a time because it is going to load on your machine in a format of lot of movies calculations to the your system. Then it's going to increase our energy consumption of our system. Then अगर आपको ये वाला ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो ठीक है, अगर नहीं भी लगा हो तो भी ठीक है। तो या तो लाइक कीजिए या तो डिसलाइक कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आपको ये जो भी प्रोजेक्ट है ये मेरी गिटहब के रिपोजिटरी में मिल जाएगा। एंड ओके फाइन, थैंक यू। No more expectations from you. So here you can see the 10 movies are recommended. Okay, got it.